the course everyone. Course से start करते हैं and let us see what is the syllabus title. The syllabus title is Pakistan Studies. The syllabus title is Pakistan Studies. The syllabus code is 2059 for O level students. जितने भी students O level Pakistan Studies पढ़ते हैं उनके लिए syllabus code is 2059. And the students who study IGCSE Pakistan Studies, they have the syllabus code 0448. is इनका syllabus code होता है 0448. There is no difference in IGCSE and O levels Pakistan Studies. Pakistan Studies syllabus paper pattern remains the same for IGCSE and O levels. तो O levels और IGCSE दोनों का बिल्कुल सेम रहता है syllabus और paper pattern, उसमें कोई भी difference नहीं होता. Now, in Pakistan Studies, we have two papers, paper 1 and paper 2. So, paper 1 is History and Culture of Pakistan, 2059/01 0448/01. 01 का मतलब है we're talking about paper 1. Paper 1. Then we have paper 2, Environment of Pakistan, 2059/02 0448/02. 02 का मतलब है we're talking about paper 2. Environment of Pakistan को simply हम geography कहते हैं. We call it geography. History and culture of Pakistan को हम simply history कहते हैं. So in Pakistan studies, we're going to study about two subjects. ये दो proper subjects हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा साल पढ़ेंगे. One is history, the other one is geography. I would recommend you all कि आप सबके पास इस वक्त कोई ना कोई नोटबुक होनी चाहिए. सही है? Do not sit idle. घर पे बिल्कुल सुकून से नहीं बैठना है. आपके पास कोई ना कोई नोटबुक होनी चाहिए और नोटबुक के अंदर आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा. जितनी भी बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा आप उसके पॉइंटर साथ साथ में बनाते रहना. एक्टिवली पार्टिसिपेट करना क्लास में भी. Now let us see the syllabus everyone. The history P1 syllabus has 16 chapters. हमारे पास history में total 16 chapters हैं and these 16 chapters are divided into 3 sections और ये 3 sections में divided हैं. So we have 16 chapters divided into 3 sections. In geography P2 we have 12 chapters divided into 8 sections. So altogether 16 plus 12 means we are talking about 28 chapters. हम 28 chapters की बात कर रहे हैं. सही है? We're talking about 28 chapters in total. हमारे पास total 28 chapters हैं. This makes it a very lengthy syllabus. ये बहुत ज़्यादा lengthy syllabus हो जाता है. I guess मेरी annotations board के ऊपर नहीं आ रही. मैं जल्दी से net connection change कर देता हूँ ताकि आप लोग मेरी annotations को भी देख सकें. What I am annotating over here, आपको annotations नजर आ रही है. Secondly, I am using this laser pen. मैं laser pen को इस्तेमाल कर रहा हूँ. As you can see, when I lift the pen, तो ये writing मिट जाती है. सही है? तो जो भी pointers आपको बनाने हैं साथ साथ में आप बनाते रहिएगा. Now let's see the syllabus of history everyone. History के syllabus में 3 sections हैं और ये start होता है 1600 से. Section number 1 starts with chapter number 1, Religious Reformers, Decline of the Mughal Empire, EIC, War of Independence, Sir Syed Ahmad Khan and Languages. तो ये हमारा section 1 है. Then we will move on to section number 2 that goes from 1900 till 1947, from 1900 till 1919, then Khilafat movement, then 1924 to 39 towards independence, Jinnah, Iqbal and Rahmat Ali. And then section 3 is from 1947 till 1999. ये हमारा section number 3 है. In the end, we have the chapter of international relations. We usually call it section 3B. हम इसे usually 3B कहते हैं और इस वाले हिस्से को हम 3A कहते हैं. सही है? तो 3A and 3B. So this makes it like around 4 sections. हम लोग इसे roughly speaking इसे 4 sections में divide कर देते हैं. 1, 2, 3A and 3B. About geography, we have location, topography, climate, water, forest, mineral, fishing, power resources, agriculture, industries, trade, transport, telecommunications, and population. So these are the chapters that we have in geography. तो ये सारे हमारे पास geography के chapters हैं. Now let us see कि कौन-कौन सी resources हैं जो कि आपको मिल जाएंगी. So section 1 के key points यानी कि we're talking about the notes. So the notes of section 1
notes of section 2, notes of section 3, geography notes chapter 1 till 6, geography notes chapter 7 till 12 and yearly past papers. ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा। फ्री पीडीएफ की फॉर्म में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। क्या क्या चीजें मिल जाएंगी? नोट्स ऑफ हिस्ट्री सेक्शन 1 टू ऑल द रेगुलर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जितने भी रेगुलर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उन सबको फ्री पीडीएफ नोट्स ऑफ हिस्ट्री सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, ज्योग्राफी चैप्टर 1 till 12 आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ईयरली पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फॉर फ्री। अबाउट द टॉपिकल पास्ट पेपर्स, तो टॉपिकल पास्ट पेपर्स दो तरह के, सही है। वन इज द ओल्ड एडिशन ऑफ 10 years past papers. They are in the form of free PDF, but we have the new edition as well. The new edition is of 20 years past, 25 years, in fact 25 years past papers compiled, और वो वर्कबुक की फॉर्म में, वो क्लास वर्क और होमवर्क की फॉर्म में। दिस इज व्हाट यू नीड टू परचेज, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू परचेज। सिर्फ यही आपको परचेज करना होगा। कैसे परचेज करना है वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। सो in the workbooks, what do we have in the workbooks? In these new workbooks, we have the past paper questions and anticipated questions. What is meant by the anticipated questions? This means the unseen questions. ऐसे सवालात होंगे जो कि अनसीन क्वेश्चंस होंगे, जो कि अब तक एग्जाम में नहीं आए हैं लेकिन फ्यूचर में कभी एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनका मैं होमवर्क भी देता हूं, उन्हें मैं क्लास वर्क में भी सॉल्व करवाऊंगा। वी आर गोइंग टू सी इन अ व्हाइल, थोड़ी देर में आप देखेंगे मैं और आप आज ही की क्लास में पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी क्लास। आज ही की क्लास में मैं आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। जो भी हमारे विनर्स होते हैं पास्ट पेपर्स असाइनमेंट्स के, पास्ट पेपर चैलेंजेस के, उन्हें आखिरी में अवार्ड भी मिलता है। दे यूजुअली गेट द कैश अवार्ड। अच्छा, इसके अलावा वी हैव द टॉपिकल टेस्ट्स एंड क्विजेस। टॉपिकल टेस्ट्स और क्विजेस हमारे किस तरीके से होते हैं? फॉर्मल टेस्ट होंगे, कोई भी टॉपिक हमारा खत्म होगा उसके फौरन बाद एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा, जस्ट टू इंश्योर कि आप ईच एंड एवरी टॉपिक में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, आपकी जो नॉलेज है कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही। इसी वजह से हर टॉपिक का एक टेस्ट भी होगा। इसके अलावा स्टे अलर्ट विद द इंस्टा क्विजेस। इंस्टा क्विजेस क्या होते हैं? मैं अक्सर क्या करता हूँ कि मुझे मालूम है कि आप लोग अक्सर टाइम पास करने के लिए इंस्टा पे चले आते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं। तो मैं वहां पर भी आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। वो किस तरीके से? मैं इंस्टा के ऊपर क्विजेस पोस्ट कर देता हूँ और वहां पे भी आप देखें कि अक्सर लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इतने सारे लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सो यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द इंस्टा क्विजेस एज वेल। नाउ द जर्नी इज सिंपल। Until the midterm, we're going to study this portion. मिड टर्म तक हमें ये पोर्शन कवर कर लेना है। आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा दैट वुड बी इन दिसंबर। दिसंबर के आखिर में हमारा मिड टर्म एग्जाम होगा। उसमें बाय दैट टाइम वी वुड बी डन विद हिस्ट्री सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। हिस्ट्री सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका होगा, और ज्योग्राफी के विल बी डन विद अराउंड 6 चैप्टर्स बाय दिसंबर। दिसंबर तक हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। देन वी वुड बी इन जैन फेब मार्च अप्रैल, और फाइनली फिर हमारा मॉक एग्जाम होगा। रफली स्पीकिंग, आपका हिस्ट्री का सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड 30 days बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से, कैम्ब्रिज के एग्जाम से 30 days पहले आपका हिस्ट्री का सिलेबस इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी का सिलेबस आपका 25 days पहले खत्म हो जाएगा। सही है? तो रफली स्पीकिंग अबाउट अ मंथ prior to the exams आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा। then we'll do the past papers, we will have the year end the revision workshops as well। हमारी revision workshops भी होंगी। उसके बाद फिर आप एग्जाम के लिए टोटली तैयार हो चुके होंगे। रिवीजन करने के क्या तरीके हैं? रिवीजन करने का एक तरीका ये है कि मैंने बहुत सारा स्टफ ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा वी हैव द एलएमएस पोर्टल। एलएमएस पोर्टल के ऊपर जो भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा वो सब उस पर अपलोड हो जाएगा एंड यू विल गेट द एक्सेस। सही है? आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी, आप कभी भी उसे रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट वाज एन इंट्रो एवरीवन। लेट्स सी द स्टडी प्लानर फॉर दिस ईयर। इस साल का पूरा प्लानर हमारा कैसा होगा, मैं इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। सो राइट नाउ वी आर बिगिनिंग विद जुलाई। हम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस मंथ? इस महीने का हमारा टारगेट क्या है? डे 1। आज डे 1 है, सो दिस इज मंडे एंड दिस इज वेडनेसडे।
तो जितनी भी मंडे की क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ओरिएंटेशन एंड देन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. अगेन in the class of Wednesday, we're going to continue with the decline of the Mughal Empire. Decline of the Mughal Empire को हम continue करेंगे. Next week, we will study the location maps. Location maps. Also, we'll have a short quiz. हमारा एक short quiz होगा, एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा. जिसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज अगेन, वाटर रिसोर्सेज अगेन, अनदर टेस्ट, रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड सो ऑन. तो इस तरीके से ये पूरा स्टडी प्लानर है जिसे फॉलो किया जाएगा. सही है? तो पूरा साल इस स्टडी प्लानर को हम लोग फॉलो कर लेंगे. दिस ब्रिंग्स अस टू द चैप्टर डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. एवरीवन, आई होप एवरीवन हैज द नोटबुक्स अवेलेबल. आप सबके पास नोटबुक्स होनी चाहिए. तो नोटबुक्स के अंदर जो भी पॉइंटर्स बनाने हैं आप लोग साथ साथ में पॉइंटर्स बनाते रहिएगा. Let us see this map, everyone. This map shows you the extent of the Mughal Empire by the end of the reign of Aurangzeb in 1707. ये मैप आपको दिखा रहा है कि औरंगजेब जो एक मुगल बादशाह था, जब उसका दौर खत्म हुआ तो कितनी बड़ी एम्पायर हो चुकी थी. लेट्स लुक एट द बोर्ड एवरीवन. इसमें आपको काबुल और गजनी का इलाका नजर आ रहा है. काबुल और गजनी टुडे दे आर द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान. आजकल ये अफगानिस्तान का पार्ट है. प्रीवियसली दिस यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर. ये मुगल एम्पायर का ही पार्ट था. सो वंस अपॉन अ टाइम दिस पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर. मैप पे देखो, इस साइड पे आपको एक जगह नजर आती है जिसका नाम है चिटागोंग. क्या नाम है इसका? चिटागोंग. एंड चिटागोंग इज टुडे इन बांग्लादेश. आजकल ये बांग्लादेश का पार्ट है. वंस अपॉन अ टाइम दिस यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर. एक जमाना था जब ये भी मुगल एम्पायर का पार्ट हुआ करता था. दिस शोज यू कश्मीर. एंड कश्मीर इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. वंस अपॉन अ टाइम दिस यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर. और आजकल के हिसाब से देयर इज अ प्लेस इन इंडिया नोन एज कर्नाटक. So Karnataka is in India right now, but once upon a time this used to be the part of the Mughal Empire. So you can see कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इतनी बड़ी कोई मुगल एम्पायर हुआ करती थी. जब मुगल एम्पायर इतनी बड़ी थी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ये मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगी. लेकिन there were several reasons behind the decline of the Mughal Empire, and let us see what those reasons were. ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज नोन एज द इंटरनल रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, एंड देन वी हैव द एक्सटर्नल रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसीज. नंबर टू, ineffectiveness of the successors of Aurangzeb. Number three, rise of Marathas and Sikhs. Possibly rise of Marathas तक हम अपना लेक्चर खत्म कर देंगे. So this is what we need to study in today's class. On Wednesday, we're going to study about invasion from Persia, invasion from Afghanistan, arrival of the British East India Company. तो ये वाला पोर्शन हम वेंसडे की क्लास में खत्म कर देंगे. आज की क्लास में 50% ऑफ दिस टॉपिक वुड बी एंडेड. आज की क्लास में ही, पहली क्लास में 50% टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा. Let's see everyone the impact of Aurangzeb's policies. औरंगजेब का नाम तो आप सभी ने सुना होगा. Aurangzeb was a powerful Mughal ruler. औरंगजेब ruled for about 50 years. तकरीबन 50 साल तक औरंगजेब ने हुकूमत की है. अच्छा, 50 साल तक औरंगजेब ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हुई होंगी. कुछ अच्छी पॉलिसीज भी होंगी, कुछ खराब पॉलिसीज भी होंगी. यहाँ पर जो मेनली फोकस है दैट इज ऑन द बुरी पॉलिसीज. जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? बुरी पॉलिसीज के ऊपर है कि उसने ऐसा क्या काम खराब किया जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया. सो लेट्स सी एवरीवन. और मैं आपको मैप की फॉर्म में भी दिखाऊंगा. सो द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वाज दिल्ली. दिल्ली में मुगल एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था. एंड औरंगजेब बीइंग द रूलर, बीइंग द एम्परर, ही शुड हैव बीन इन दिल्ली. उसे दिल्ली में होना चाहिए था. बट Aurangzeb was involved in 25 years of war against the Marathas in the south. औरंगजेब 25 साल तक मराठास से साउथ में लड़ रहा था. Similarly, for 3 years, Aurangzeb was involved to fight against the Sikhs in Punjab, the Rajputs, the Jats, etc., etc. 3 साल मजीद औरंगजेब लड़ाई में लगा दिया. इसका मतलब यह है कि औरंगजेब ने 28 years out of about 50 years, he was involved in
fighting against the non-Muslims. अगर ये 25 साल या 28 साल तक लड़ते रहेंगे, द क्वेश्चन अराइजेस कि एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देख रहा है? इफ औरंगजेब वाज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्ड इन फाइटिंग अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स, तो सवाल ये उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा था? बादशाह का काम सिर्फ लड़ना और एक्सपेंशन नहीं होता, बादशाह का काम तो एडमिनिस्ट्रेशन देखना भी होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेंगे तो इससे इफेक्ट क्या आएगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस वुड वीकन द एडमिनिस्ट्रेशन, आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर होती जाएगी। ऑल्सो he was campaigning against the non-Muslims for so many years, it exhausted the resources. What do we mean by exhausted the resources? By resources we mean human resources. बहुत सारे जो कि मर रहे होंगे, दिस मीन सोर्सेज। जंग फ्री में नहीं लड़ी जाती, उसमें बहुत लगता है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट हो रही थी, मिलिट्री रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट हो रही थी, जो वेपन्स इक्विपमेंट्स हैं वो भी एग्जॉस्ट होते जा रहे थे। सो दिस शोज यू हाउ दिस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। नाउ वी मूव ऑन टू द सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज की। नंबर वन वॉज डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी फॉर द नॉन मुस्लिम्स। जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था। एक जमाना था, देयर वाज अ रूलर, हिज नेम वाज अकबर। नाम तो सबने सुना होगा अकबर का। एंड अकबर इज नोन एज मुगल आजम। अकबर को मुगल आजम कहते हैं। अकबर के दौर में बहुत सारे जनरल्स भी ऐसे थे जो कि हिंदू हुआ करते थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी ऐसे थे जो कि नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे। अकबर ने मेनली केपेबल लोगों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में रखा हुआ था, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसी तरीके से वो जो केपेबल लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे ना। औरंगजेब वाज अ स्टॉन्च एंड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। औरंगजेब डिसमिस्ड द नॉन मुस्लिम्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। औरंगजेब ने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी आर्मी से, अपनी सिविल सर्विसेज में से नॉन मुस्लिम्स को रिमूव कर दिया। अगर वो केपेबल लोगों को रिमूव कर देंगे, इससे एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो जाएगी। ऑल्सो ही वुड बिकम अनपॉपुलर अमंग द नॉन मुस्लिम्स। मोर ओवर, टैक्सेस देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो मुगल का दौर हो, चाहे वो आज का पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। कभी भी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो आवाम कहती है बहुत महंगाई हो रही है, आवाम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उस जमाने में भी औरंगजेब के दौर में बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, एंड दैट इज व्हाई ही वाज गेटिंग अनपॉपुलर अमंग द पीपल। ही वाज आल्सो बीइंग अनपॉपुलर ड्यू टू एक्स्ट्रावेगेंस। अच्छा, एक्स्ट्रावेगेंस की एग्जाम्पल लिखिए आपकी बुक में, नाइजल कैली की जो बुक है उसमें एग्जाम्पल लिखिए कि औरंगजेब ने एक्स्ट्रावेगेंस इस तरीके से की थी दैट ही हैड मेड द पर्ल मॉस्क। उसने एक बहुत ही बड़ी सी मस्जिद बनाई थी, और वो एक एक्स्ट्रावेगेंस की एग्जाम्पल है। Now, most of the students in this class would be Muslims, और आप लोग कहेंगे कि सर ये तो गलत बात है, मस्जिद बनाना तो सब आपका काम होता है, तो ये इसे एक्स्ट्रावेगेंस क्यों कहा जा रहा है? ऑथर ने लिखा है कि इट वाज एन एक्स्ट्रावेगेंट एक्टिविटी बिकॉज दिस वाज मेड टू ऑफर ओनली प्राइवेट प्रेयर्स, ओनली प्राइवेट प्रेयर्स। तो इसमें लिखा ये गया है बुक के अंदर कि औरंगजेब ने एक बहुत ही बड़ी शानदार सी मस्जिद बनाई थी, और वो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि वहां पे वो अपनी प्राइवेट प्रेयर्स को ऑफर करेंगे। इस वजह से ऑथर को ये लगता है कि दिस वाज एन एक्ट ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। नाउ सी दिस एवरीवन, द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी? औरंगजेब हैड गैदर्ड सम रिलीजियस स्कॉलर्स। कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स को गैदर किया, उनके साथ मिलके एक बुक कंपाइल करवाई जिसका नाम था फतावा आलमगीरी। फतावा आलमगीरी में क्या लिखा था? इन दिस बुक इट वाज रिटन हाउ टू गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम के प्रिंसिपल्स के हिसाब से किस तरीके से मुल्क को चलाना है ना। औरंगजेब वाज अ मुस्लिम, बट डू यू नो कि हिंदुस्तान में कितने मुसलमान थे? इन इंडिया एट दैट टाइम अबाउट 25% मुस्लिम्स। मुसलमानों की जो आबादी थी वो 25% थी। दिस मीन्स कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज नॉन मुस्लिम्स, और ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स थे। डू यू थिंक नॉन मुस्लिम्स को ये बात अच्छी लगेगी? नॉन मुस्लिम्स को ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगेगी कि 25% मुस्लिम्स जो कि माइनॉरिटी में हैं वो हमारे रूलर बन गए एंड दे आर गवर्निंग द कंट्री अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। उन्हें ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। औरंगजेब ऑल्सो रीइम्पोज्ड द जिजिया टैक्स। डू यू नो व्हाट इज जिजिया टैक्स? ये जिजिया टैक्स क्या होता है? जिजिया टैक्स इज एन इस्लामिक टैक्स। ये एक इस्लामिक टैक्स है
एंड इट इज इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम्स हु आर लिविंग इन द इस्लामिक टेरिटरी। कोई भी अगर गैर मुसलमान मुसलमानों की सरजमीन पे रहता है तो उसे टैक्स पे करना होगा। टैक्स क्यों पे करना होगा? टैक्स इस वजह से पे करना होगा, इफ दे वांट द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज। अगर उन्हें अपने जानो माल की हिफाजत चाहिए तो उन्हें ये जिजिया टैक्स पे करना होगा। ऑल्सो दिस वुड एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम ज्वाइनिंग दी मुस्लिम्स आर्मी, और उन्हें फिर एग्जेम्पशन मिल जाएगी कि वो मुसलमानों की आर्मी को ज्वाइन भी नहीं करेंगे। लेकिन नॉन मुस्लिम्स डिड नॉट लाइक टू पे दिस टैक्स। नॉन मुस्लिम्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ये टैक्स क्यों पे करें। दिस वाज एन एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स पे करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये जो टैक्स पे कर रहे थे उनके दिमाग में ख्याल था कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, औरंगजेब उसी टैक्स मनी से ही इज फाइटिंग अगेंस्ट अस, ही इज एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर एंड फाइटिंग अगेंस्ट अस, सो व्हाई शुड वी पे द टैक्स। तो वो नहीं चाहते थे टैक्स को पे करना। Similarly, Aurangzeb started to interfere in the local religions. Interference in the local religions was also a policy of Aurangzeb. Aurangzeb banned sati. ये सती क्या चीज है? सती इज अ ट्रेडिशनल हिंदू प्रैक्टिस, हिंदूज की एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसमें बेवाओं को, हिंदू बेवाओं को, विडोज को जिंदा जला दिया जाता है along with the dead bodies of their husbands। अच्छा, हिंदुइज्म में क्या होता है, उसमें दफन नहीं करते, सही है, दे डू नॉट बेरी द डेड, दे बर्न द डेड पीपल। वो लोग क्या करते हैं कि जला देते हैं, फायर पे रख के उसे जला देते हैं। अब ट्रेडिशन ये था कि जो बेवाएं हैं दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, उन्हें दोबारा से शादी करने की इजाजत हिंदुइज्म नहीं देता, एंड दे वर ऑल्सो बर्न अलाइव विद द डेड बॉडीज ऑफ देयर हस्बैंड्स। औरंगजेब को ये बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस लगी, औरंगजेब ने इसे बैन कर दिया, बट हिंदूज डिड नॉट लाइक इट। हिंदूज ने कहा भाई आप कौन होते हैं हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करने वाले, उनके लिए तो सवाब का काम है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मुसलमानों के लिए जब फ्रांस में ऐसा हुआ था अभी 2-3 साल पहले कि फ्रांस में हिजाब के ऊपर बैन लगा दिया था, तो मुसलमानों को बहुत बुरा लग रहा था कि भाई आप कौन होते हैं हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करने वाले, हमारी खवातीन तो हिजाब करेंगी। तो इसी तरीके से उस जमाने के जो हिंदूज थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि सती को क्यों बैन किया जा रहा है। सिमिलरली औरंगजेब बैंड सिंगिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। औरंगजेब ऑल्सो फिक्स्ड द लिमिट ऑफ बियर्ड फॉर एवरीवन। इस्लाम के हिसाब से दाढ़ी की क्या लिमिट होती है? दैट इज वन क्लेंच्ड फिस्ट, एक मुट्ठी के बराबर होती है। लेकिन सिखों के रिलीजन पता है क्या कहता है? सिखों का रिलीजन ये कहता है कि उनकी दाढ़ी, उनके बाल लंबे लंबे हो सकते हैं। मतलब आप ये देखें कि यहाँ पे पिक्चर क्रॉप हो गई है लेकिन उनकी बेयर्ड और नीचे तक जा रही है। एंड दिस पर्सन वॉज रंजीत सिंह। रंजीत सिंह, ही वॉज अ सिख रूलर। और सिख रिलीजन में, सिखिज्म में कहा यह जाता है कि दे आर अलाउड टू ग्रो देयर बेयर्ड, दे आर अलाउड टू ग्रो देयर हेयर। वो अपने जितने मर्जी चाहे बाल बढ़ा सकते हैं, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यू कैन ऑल्सो राइट ऑन द चैट। चैट पे लिखेंगे, आपको दो हैसम जावेद यहाँ पे लिख रहे हैं। एक हैसम जावेद होस्ट नजर आ रहा है जहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग का साइन और कैमरा खुला हुआ है। एक हैसम जावेद को होस्ट नजर आ रहा है। सही है, तो को होस्ट पे क्लिक नहीं कीजिएगा, क्लिक ऑन हैसम जावेद होस्ट जहाँ पे आपको कैमरा नजर आ रहा है, और उस आईडी के ऊपर आप लोग मुझसे चैट कर सकते हैं। मेरा सवाल है आप लोगों से, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस एक्टर? इस एक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कोई पर्सन? जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड? बॉलीवुड का एक्टर है, पता है किसी को? जल्दी जल्दी चैट पे लिखो। इज एनीवन राइटिंग ऑन द चैट? हैसम जावेद होस्ट की आईडी पे लिखिएगा। नहीं, कोई मूवीज वगैरह नहीं देखता? कोई तो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आज की क्लास में आपको, लेकिन आप लोगों को थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आई गेस एक आंसर आया मेरे पास, वानिया। वानिया डज नॉट नो हु दिस पर्सन इज। एनीवे, चलें इस पिक्चर से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। सो दिस इज अकबर अकॉर्डिंग टू अ मूवी, एंड दिस इज औरंगजेब अकॉर्डिंग टू अ मूवी। डू यू सी द डिफरेंस ओवर है? द पोर्ट्रेयल ऑफ अकबर वर्सेस औरंगजेब। अगर आप अकबर को देखो तो अकबर को कैसा दिखाया है? यू कैन सी के काफी एक हीरोइक फिगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और इसके साथ जो लाइट है काफी ब्राइट लाइट रखी गई है। ऑल्सो यू कैन सी द अटायर, आपको अटायर भी अच्छा लग रहा है, आपको इसका डिसेंसी भी नजर आ रही है मे बी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट सी हाउ औरंगजेब इज शोन ओवर हियर।
औरंगजेब इज शोन लाइक अ विलन, इसे एक विलन की तरह शो किया गया है। हाँ या ना, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आप लोग बताएं। एंड सी द बैकग्राउंड, आप लोग बैकग्राउंड को देखो, कितना डार्क बैकग्राउंड यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे कितना वेल लिट बैकग्राउंड है, कितना वेल लिट बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है। सो दिस शोज के हाउ द नॉन मुस्लिम्स इवन इन टुडेज वर्ल्ड, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, इतने साल के बाद भी आज भी नॉन मुस्लिम्स को ऐसा फील होता है कि औरंगजेब एक बहुत जालिम इंसान था और अकबर एक बहुत ही अच्छा इंसान था। सो दिस इज हाउ दे राइट हिस्ट्री, इसी तरीके से हिस्ट्री को लिखा जाता है। नाउ लेट अस सी द पास्ट पेपर्स एवरीवन। दिस इज द वर्कबुक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इन दिस वर्कबुक यू हैव ऑल द वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। यू विल सी द मार्क्स स्कीम एज वेल, आपको मार्क्स स्कीम नजर आएगी कि मार्क्स स्कीम के हिसाब से कितना लिखना है, क्या लिखना है। यू विल ऑल्सो सी द की पॉइंट्स, आपको यहाँ पर की पॉइंट्स भी नजर आएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स को अपने आंसर में लिखना चाहिए। सो लेट अस सी एवरीवन, इन आवर एग्जाम देयर इज अ क्वेश्चन फॉर टेक्स्ट सोर्स। आपको एक टेक्स्ट सोर्स गिवन होती है, आपको एक पैसेज गिवन होता है, और इस पैसेज की बेस के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे किया जाता है। दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स के लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। लेट्स रीड विद मी एवरीवन, आप सब लोग मेरे साथ पढ़िएगा। सोर्स ए, अक्टूबर नवंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, 3 मार्क्स। During Aurangzeb's reign, he developed good relationships with foreign traders and made generous donations to several Hindu temples. He introduced restrictions on personal behavior. For example, he banned outdoor singing, dancing, and made a declaration on the length of beards. Aurangzeb also increased taxes to pay for expensive wars and used large amounts of money to pay for luxurious buildings. According to some historians, a number of these policies contributed to the increasing instability of the Mughal Empire by the time of Aurangzeb's death. This article has been taken from History Today, a book of 1984. According to source A, which policies do some historians claim contributed to the increasing instability of the Mughal Empire by the time of Aurangzeb's death, October-November 2021, for 3 marks? मार्क्स स्कीम क्या कहती है इसके बारे में? 1 mark फॉर ईच रेलेवेंट स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सोर्स। इस सोर्स में से, अपनी तरफ से नहीं, इस सोर्स में से कोई से भी 3 पॉइंट्स आपको निकाल के लिखने हैं जो कि इस सवाल को आंसर करेंगे। इस सवाल के हिसाब से आपको बताना है औरंगजेब की कौन सी ऐसी 3 पॉलिसीज थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। सो लेट अस सी सम ऑफ द आंसर्स एवरीवन। You can write any 3. Aurangzeb introduced restrictions on personal behavior. He banned outdoor singing. He banned dancing. He made a declaration on the length of beards. He increased the taxes to pay for many expensive wars. He used large amounts of money to pay for luxurious buildings. इस तरीके से कोई से भी 3 पॉइंट्स लिखेंगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। Now let us see, अभी अभी हमने जिजिया के बारे में क्वेश्चन पढ़ा है, तो जिजिया के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। अक्टूबर नवंबर 2020 में एक सवाल आया था, डिस्क्राइब द जिजिया टैक्स। 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए कितना लिखना होगा? मार्क्स स्कीम के हिसाब से रिवॉर्ड ईच करेक्ट स्टेटमेंट विद 1 मार्क। आप 4 पॉइंट्स लिखेंगे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड फॉर अ डेवलप्ड स्टेटमेंट। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को डेवलप करके एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो आपको उसमें 2 मार्क्स मिल सकते हैं। लेट अस सी जिजिया के बारे में हम क्या जानते हैं। जिजिया टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1679 बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब। इट इज अ टैक्स imposed on non-Muslims. It was an alternative to joining the Muslim army. It was used as a tax for protection or defense of the non-Muslims living in the Muslims' territory. Previously, Akbar had abolished this tax, but Aurangzeb reintroduced the tax. So, the non-Muslims protested against this tax. Aurangzeb ignored the protest and persevered with the tax. और औरंगजेब ने इस टैक्स को लगा के रखा जबकि नॉन मुस्लिम्स इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब मैं आपको एक सवाल सॉल्व करवाऊंगा। You're going to write with me. मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, पूरा आंसर लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ पूरा आंसर लिखेंगे। मैं क्यों आंसर लिखता हूँ और आप लोग क्यों आंसर लिखेंगे मेरे साथ साथ,
लाइव क्लासेस में आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स, आप लोग मेरे साथ साथ मेरी राइटिंग स्पीड को मैच करेंगे। जब पूरा साल आप लोग मेरी राइटिंग स्पीड को मैच करेंगे तो आपकी राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना इस वजह से जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि भागते हैं, लिखते नहीं है। वो कहते हैं नहीं सर, लिखेंगे नहीं, हाथ में दर्द हो रहा है और ये वो। आखिर में वही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम में पेपर छूट जाता है। अब सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपको आता सब कुछ है, लेकिन एग्जाम में अगर लिख ही नहीं पाएंगे, टाइम टाइम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, आपका पेपर रह जाएगा। दैट वुड बी स्ट्रेट जीरो, आपका तो पेपर छूट जाएगा, आपका पूरा पूरा आंसर रह जाएगा। सो यू नीड टू राइट अलोंग विद मी, आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। Explain why Hindu community objected to the jizya tax October-November 2021, question number 1 part C, 7 marks। 7 marks का आंसर किस तरीके से लिखना है? 7 मार्क्स का आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू लेवल 3 ऑफ द मार्क्स स्कीम। मार्क्स स्कीम के हिसाब से लेवल 3 का आंसर लिखना है। अब ये लेवल 3 का आंसर क्या होता है? लेवल 3 मींस वी नीड टू एक्सप्लेन द रीजंस, हमें रीजंस को एक्सप्लेन करना है। वी नीड टू एक्सप्लेन द रीजंस। हाउ मेनी रीजंस, हाउ मेनी पैराग्राफ्स? वी नीड टू एक्सप्लेन 3 reasons in 3 separate paragraphs। 5 marks would be given for 1 explanation, 6 marks would be given for 2 explanations, 7 marks would be given for 3 explanations। तो हमें 3 पैराग्राफ बनाने हैं, 3 पैराग्राफ बनाएंगे और इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस सी द पॉइंट्स एवरीवन। पॉइंट्स हमारे सामने, इन्हें पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को, इन कीवर्ड्स को हम अपने आंसर में लिखेंगे। सो लेट्स सी एवरीवन। The charge was levied on able-bodied non-Muslims adult men. Only the non-Muslim men who chose to join the Mughal army were exempted from the charge. It created an incentive among the non-Muslims to convert to Islam to avoid the charge. The jizya charge was sometimes more than the zakat charge paid by the Muslim men. Some of the charge was used for Deccan wars. Some of the charge was used for to support Islamic religious activities. Some of the charge was used for funding the royal court. So these are some of the reasons why the Hindus hated the jizya tax। हिंदूज को jizya tax क्यों बुरा लग रहा था? अपने अपने हाथों में पेन निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें और सीखेंगे किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। लेट्स सी एवरीवन। One of the reasons why the Hindus objected to the jizya tax was due to its discriminatory nature, as they had to pay an additional tax as they were non-Muslims. Full stop. So they felt being treated as second class citizens. Full stop. Also, the tax was higher than the zakat tax imposed on the Muslims. So let's see everyone how to write a good paragraph. This is how you can write a good paragraph. You start immediately with the identification of the reason and then you explain the reason. आपको पहले आइडेंटिफाई करना है रीजन को, उसके बाद आपको रीजन को एक्सप्लेन करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन ईच एंड एवरी पैराग्राफ ऑफ द आंसर। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करूंगा। Secondly, the Hindus
objected to the jizya tax because they believed it was imposed to forcefully convert the non-Muslims into Islam. Full stop. As it was imposed on able-bodied non-Muslim men, while only way to be exempted from joining the Muslim army was the payment of जिजिया. ठीक है, तो ये सेकंड रीजन था कि क्यों उन्हें लगता था कि हम टैक्स नहीं पे कर रहे. हम टैक्स इस वजह से नहीं पे कर रहे क्योंकि हमें जानबूझ के कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू इस्लाम. आखिरी, लास्टली, हिंदूज ऑब्जेक्टेड टू जिजिया बिकॉज they believed the tax money was used in the converts and to support Islamic activities. Full stop. Non-Muslims hated the tax because they did not benefit from it. एक अच्छा आंसर 7 मार्क्स के लिए 3 पैराग्राफ में इस तरीके से लिखना है. 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स, 3 डिफरेंट रीजंस एक्सप्लेन. 3 डिफरेंट रीजंस को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया. सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द आंसर. इस तरीके से अपना आंसर लिखते हैं. Similarly, we have over here question: explain the impact of Aurangzeb's domestic policies on the stability of the Mughal Empire. This is your homework, everyone. ये आपका असाइनमेंट है और ये आपको करना होगा कि औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर क्यों हुआ था. सही है, तो आज के लेक्चर के अंदर ही ये मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है. अच्छा, फॉरन से एलएमएस का एक्सेस आई डोंट नो आप लोग को मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो गिव्स के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आपको बता देंगे. एलएमएस के जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आपको बता देंगे. तो चाहे वो गिफ्ट के हों, क्लासमेट के हों, वो आपको बता देंगे कि कौन कौन से आपके एलएमएस हैं. आपकी आईडी वगैरह बन जाएगी. उसके बाद फिर आप लोग आसानी से पोर्टल के ऊपर ये देख लोगे. लेक्चर सुन के आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लोगे. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ औरंगजेब्स डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर अक्टूबर नवंबर 2023. ये पॉइंटर्स हैं. इन पॉइंटर्स को आपको इंक्लूड करके आंसर लिखना होगा. दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन, द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब. कि औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे उनकी वजह से डिक्लाइन कैसे हुआ था. Now see this diagram everyone. ये आपको डायग्राम नजर आ रही है. इनफैक्ट इसे मैं डायग्राम नहीं कहता, आई कॉल इट द स्पाइडरग्राम. मैं इसे क्या कहता हूँ? मैं इसे स्पाइडरग्राम कहता हूँ. स्पाइडरग्राम क्यों कहता हूँ? एक तो आपको 8 रीजंस नजर आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. यू कैन सी द 8 रीजंस ओवर हियर. आपको 8 रीजंस नजर आ रहे हैं. अच्छा, ये जो 8 रीजंस आपको नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. ये सारे के सारे क्या है? आपस में
इंटरकनेक्टेड हैं. दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड रीजन. ये सारे के सारे आपको इंटरकनेक्टेड रीजन नजर आ रहे हैं. सो दिस इज व्हाई आई हैव मेड दिस पैराग्राम. याद करने में आसानी हो जाएगी कि कौन कौन से रीजन हैं आपस में, किस किस तरीके से वो कनेक्टेड है. मुगल बादशाहों में एक बड़ी प्रॉब्लम थी. वो ये कि इन फाइटिंग होना शुरू हो जाती थी सक्सेसर्स के बीच में. औरंगजेब खुद भी इसी तरीके से बादशाह बना था, पता है. शाहजहां औरंगजेब के अब्बू का नाम है. तो शाहजहां की तबीयत खराब हो गई. शाहजहां फेल इल. और शाहजहां अभी बीमार थे, जिंदा हैं लेकिन बीमार थे. लेकिन चारों बेटे आपस में लड़ पड़े. ऑल्दो शाहजहां ने अपनी एम्पायर को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कि चार बेटे हैं, चारों इलाकों के गवर्नर बन जाएंगे, लेकिन फिर भी आपस में लड़ाई शुरू हो गई. और इसी तरीके से औरंगजेब के मरने के बाद भी हुआ कि उसके जो बेटे थे वो भी आपस में लड़ने लग गए. दिस शोज यू द एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन. इसका मतलब यह है कि कोई प्रॉपर कानून नहीं था कि कौन बादशाह बनेगा. एक बादशाह अगर मर जाए, एक बादशाह कितने अरसे तक बादशाह रहना चाहिए, उसके बाद नया बादशाह कौन होगा, कैसे होगा, इसका प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं था, जिसकी वजह से आपस में लड़ाइयां होती थी. इन फाइटिंग किस हद तक जा रही थी. सिर्फ औरंगजेब के बेटे नहीं लड़ रहे थे. औरंगजेब के बेटे, उनके भी बेटे और उनके भी बेटे लड़ रहे थे. मतलब ऑल टुगेदर देयर वर 12 to 17 कैंडिडेट्स हु वांटेड टू बिकम द किंग. जिसमें देयर वर द सन्स ऑफ औरंगजेब, द ग्रैंड सन्स ऑफ औरंगजेब, द ग्रेट ग्रैंड सन्स ऑफ औरंगजेब. मतलब के बच्चे, उनके भी बच्चे और उनके भी बच्चे, सब आपस में लड़े थे क्योंकि सबको बादशाह बनना था. जब आपस में ही लड़ते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है. उसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो मिलिट्री है वो भी वीक होने लग जाती है. आपकी मिलिट्री रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स, ह्यूमंस, सोल्जर्स सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, आपस में ही डिवाइडेड हो जाते हैं. और इसका मतलब ये है कि वास्ट एम्पायर को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दिस वुड लीड टू द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स. तो जो बड़ी सी एम्पायर है अब वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटना शुरू हो जाएगी. ये एम्पायर टूटती क्यों है. एम्पायर टूटती है ड्यू टू इनकेपेबल रूलर्स एज वेल. जब भी इन फाइटिंग होती थी तो इन फाइटिंग के बाद जब रूलर्स आते थे, दे यूज्ड टू बी इनकेपेबल रूलर्स. इनकेपेबल का मतलब है नालायक, नाअहल, निकम्मे रूलर्स होते थे. ऐसे रूलर्स होते थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनका फोकस नहीं होता था. दे यूज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज, मेनली आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, सिंगिंग, पोइट्री, इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते थे. जिसकी वजह से दे डिड नॉट बॉदर अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग टू द कॉमन पीपल. दिस मेड देम अनपॉपुलर अमंग द मासेस. और इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अनपॉपुलर होते जा रहे थे. जब बादशाह की नजर नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन पे, द मिनिस्टर्स बिकेम करप्ट. द मनसबदार्स, द मिनिस्टर्स, द गवर्नर्स, द कोर्टियर्स, दे बिकेम करप्ट. हु आर द मनसबदार्स. ये मनसबदार्स कौन होते हैं. मनसब मीन्स अथॉरिटी और रैंक. मनसबदार is a person with authority. तो मनसबदार्स मेनली कौन होते थे. मनसबदार यूज्ड टू बी द एडवाइजर्स, द मिनिस्टर्स एंड द टैक्स कलेक्टर्स. तो ये लोग होते थे जो कि उस जमाने में मनसबदार हुआ करते थे. एंड दीज पीपल यूज्ड टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन. जब उन्होंने देखा कि बादशाह सही से रूल नहीं कर रहा तो वो भी करप्ट होते गए. दे बिकेम मोर इन्वॉल्व्ड इन द पैलेस पॉलिटिक्स एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम्स. ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स कैसे बन रहे थे. लुक एट द बोर्ड एवरीवन. थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इतनी बड़ी कोई मुगल एम्पायर हुआ करती थी. 1707 में इट यूज टू बी अ वेरी वास्ट एम्पायर. लेकिन बाय 1730 यू कैन सी कि मुगल एम्पायर इज नाउ श्रिंकिंग. आपको मुगल एम्पायर अब श्रिंक होती हुई नजर आ रही है. यू कैन सी द नवाब ऑफ बंगाल हैड मेड हिज ओन एम्पायर. Nawab of Awadh had his own territory. This was the kingdom of Mysore. This was the Nizam's dominion. This was the Maratha Empire. This was the Nawab of Sindh's empire. This was the Sikh empire. तो एक एक करके डिफरेंट इलाके आजाद होते जा रहे थे, अपनी अपनी एम्पायर बनाते जा रहे थे. दिस ब्रिंग्स अस टू द पास्ट पेपर एवरीवन. पास्ट पेपर में इस सवाल को देखिएगा. ये सवाल कितनी दफा एग्जाम में आ चुका है. 2006, 2012, 2008, 2013, 2010, 2019. तो 6 टाइम्स इन द लास्ट 25 ईयर्स 6 दफा ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, लेकिन पैराफ्रेज करके.
Explain why the Mughal Empire declined following the reign of Aurangzeb. Explain why the successors of Aurangzeb failed to prevent the decline of the Mughal Empire. How did the successors of Aurangzeb contribute to the downfall of the Mughal Empire? Explain why the Mughal Empire declined following the death of Aurangzeb. तो ये आपने अक्सर सुना होगा अपने सीनियर से कि एग्जाम में घुमा फिरा के सवाल आते हैं। एग्जाम में पता नहीं कौन सा सवाल आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, इतना घुमा फिरा के सवाल आया कि वो समझ में नहीं आया उस टाइम पे। तो एक्चुअली होता है कि स्टूडेंट्स को इतने सारे पास्ट पेपर्स उन्होंने सॉल्व नहीं किए हुए होते हैं। मैं आपको पूरा साल हर क्लास में विल बी सॉल्विंग द पास्ट पेपर्स, इन एवरी क्लास विल बी सॉल्विंग द पास्ट पेपर्स। अगर आप टोटली प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो भी आप बहुत अच्छे से तैयार हो चुके होंगे एग्जाम तक। अगर आप स्कूल में भी जाते हैं तो आप स्कूल में भी जाके अपने अंदर बेहतरी फील करोगे, बिकॉज यू विल बी सॉल्विंग रेगुलरली 20 और 25 ईयर्स ऑफ पास्ट पेपर्स विद मी एवरी वीक। हर हफ्ते आप लोग इस तरीके से, हर हफ्ते जो भी मेरी क्लास होगी, आप लोग साथ साथ में पास्ट पेपर सॉल्व करते रहेंगे। आपके स्कूल में भी आपको इंप्रूवमेंट फील होगी, आप लोग कहीं पे भी, आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो भी आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील होगी। लेकिन साथ साथ यह वर्कबुक आप लोग को लाजमी ले लेनी है ताकि आप लोग साथ में क्लास वर्क और असाइनमेंट साथ साथ में करते रहें। So let's solve this, everyone. Aurangzeb's successors were lazy, weak, corrupt, leaving the administration to ministers who prioritized their own interests. There was no law of succession, leading to frequent struggles for power, which often ended in costly wars. Succession depended on the candidate's ability to gain support, but this did not guarantee effective leadership. These emperors were extravagant, causing financial inefficiencies and weakening their ability to defend the empire. The vastness of the empire made it difficult to manage, leading to several invasions by stronger rivals. Ultimately, the British, with their superior military might, overran the empire. Let's begin, everyone. इस आंसर को स्टार्ट करते हैं। One of the weaknesses of the successors was infighting after the reign of Aurangzeb, which was due to the absence of law of succession, full stop. This weakened the army as the resources were exhausted, full stop. कंटिन्यू करेंगे इसी पैराग्राफ को। So the successors were unable to defend such a vast empire from external threats. ठीक है, so this is my first paragraph, everyone. आप लोग सीखते रहें कि किस तरीके से पैराग्राफ को लिखते हैं, सही है। एवरी पैराग्राफ मैटर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ। सेकेंडली, द successors were incapable as they lacked statesmanship skills and were indulged in pleasure-seeking activities which made them unpopular. Full stop. This led to weak administration
while the corrupt ministers gained power. आखिरी पैराग्राफ लिखेंगे. Let's write the last paragraph, everyone. Lastly, the successors were unable to prevent from the rebellions. Full stop. So, by 1730, there was rise of independent kingdoms such as Bengal, Awadh, Sindh, etc. तो ये मैंने आपको 7 मार्कर्स सॉल्व करना सिखा दिया है आज की क्लास में. ठीक है, 7 मार्कर्स मैंने आपको सिखा दिए कि किस तरीके से 7 मार्कर्स को सॉल्व करते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर के आखिरी हिस्से पे हम चले गए. दैट इज द राइज ऑफ द मराठा एम्पायर. ठीक है, आज की क्लास का बिल्कुल आखिरी पॉइंट है, तो थोड़ी देर और आपको हौसला रखना होगा. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसके बाद फिर हमारी आज की क्लास एंड हो जाएगी. Rise of the Maratha Empire. Look at the board, everyone. Who were the Marathas? या Marathas कौन थे? Marathas were the Hindus, and Marathas were skilled guerrilla fighters. कितने लोग हैं इस क्लास में जो कि पबजी खेलते हैं? खेलते तो होंगे, मे बी पबजी या उससे मिलते जुलते कोई वॉरफेयर के गेम्स आप लोगों ने खेले तो होंगे. ऐसा हो नहीं सकता, आपकी जनरेशन के लोग तो इतने सारे गेम्स खेल रहे होते हैं. Who knows कि what is guerrilla warfare method? किसी को मालूम है कोई guerrilla warfare method इस क्लास में? कोई तो बताएगा मुझे what is meant by the guerrilla warfare method. खेलते होंगे आप लोग, पबजी वगैरह तो खेलते होंगे. आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी कि आप लोग खेलते हैं नहीं खेलते, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आप लोग खेलते होंगे. तो अगर खेलते हैं तो बता दें ईमानदारी के साथ कि what is meant by the guerrilla warfare method. नहीं पता तो चले मैं ही बता देता हूँ आपको. गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड एक ऐसा मेथड होता है वॉरफेयर का जिसमें you surround your enemy from all the sides. You make surprise attacks from all the sides. हर साइड से सरप्राइज अटैक किया जाता है, एंड द एनिमी डज नॉट नो कि अगला अटैक कब और कहां से हो जाएगा. एक्चुअल आर्मी का कैंप किधर है जहां पे हमला किया, जहां पे वो हमला कर सकते हैं. सो दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. सही है, तो दिस इज कॉल्ड द सरप्राइज अटैक. दिस इज कॉल्ड द गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड. एंड मराठास वर वेरी स्किल्ड इन दिस. मराठास इसमें बहुत स्किल्ड थे. छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको मराठास की. लुक एट द बोर्ड एवरीवन. औरंगजेब started his rule and Aurangzeb was very powerful. Aurangzeb started his expansion policy against the Marathas. औरंगजेब ने अपनी expansion policy मराठास के against start कर दी थी. Initially the Maratha ruler was Shivaji. Initially the Maratha ruler was Shivaji, and Shivaji had made a small empire in the south of Deccan. Deccan के south में यहाँ पर छोटी सी empire, इतनी छोटी सी empire बनाई थी. बट औरंगजेब वांटेड टू एक्सपेंड द एम्पायर. औरंगजेब अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था. औरंगजेब इनवाइटेड शिवाजी टू हिज पैलेस. औरंगजेब ने शिवाजी को अपने पैलेस में बुला लिया. सो शिवाजी वेंट टू द पैलेस ऑफ औरंगजेब. शिवाजी इस पैलेस में चला गया, बट शिवाजी वॉज अरेस्टेड बाय औरंगजेब. औरंगजेब ने शिवाजी को अरेस्ट कर दिया. शिवाजी वॉज एबल टू स्केप फ्रॉम द जेल. शिवाजी जेल से बच के भाग गया. When he went back to Deccan, he started a rebellion against Aurangzeb. उसने औरंगजेब के अगेंस्ट एक rebellion start कर दिया. This rebellion, this fighting lasted for 25 years. 25 years तक the Marathas kept on fighting with Aurangzeb, and Aurangzeb could not completely eliminate the Marathas. औरंगजेब ने मराठास को completely खत्म नहीं किया. जब औरंगजेब की डेथ हो गई, मुगल एम्पायर वाज डिक्लाइनिंग, द सक्सेसर्स वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. Marathas got the opportunity, and in 1737 Marathas attacked the capital of the Mughal Empire. They attacked and looted Delhi. उन्होंने दिल्ली पे हमला कर दिया और दिल्ली को लूटा भी.
This is the map of 1730s, everyone. This map shows you once upon a time this used to be the Mughal Empire. एक जमाना था कि जब ये मुगल एम्पायर हुआ करती थी, but now you can see कि by 1730 this had become the Maratha Empire. इतनी बड़ी मराठा एम्पायर हो गई थी 1737 में. They had even got the courage to attack on the Mughal capital of Delhi, और 1737 में मुगल कैपिटल दिल्ली पे भी हमला कर दिया था. See this map, everyone. This is the map of 1761. You can see the red color East India Company. You can see the yellow color Maratha Empire. You can see the blue color Kingdom of Mysore. You can see the green color Durrani Empire. You can see the Sikh Empire, and you can see the European factories. There was no Mughal Empire by this time. इस जमाने में आपको कोई मुगल एम्पायर नजर नहीं आ रही, because all the areas of the Mughals were taken over by the Marathas. तो इतने सारे areas को मराठास ने टेक ओवर कर लिया था. This was their contribution to the decline of the Mughal Empire. Let's solve the last questions of this topic, everyone. तो ये सवाल आए हैं मई जून 2013 में. Describe what the Marathas did. 4 marks. Marathas lived in Deccan. Aurangzeb had failed to crush them. They were known for skills as guerrilla fighters and devotion to Hinduism. In 1737, they defeated the Mughal army outside Delhi, which they occupied in 1760. They were defeated by the Afghans in the Battle of Panipat in 1761. In the third Battle of Panipat, उन्हें डिफीट कर दिया गया था. Why were the Marathas defeated after the decline of the Mughal Empire? मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद मराठास को क्यों डिफीट कर दिया गया? अक्टूबर नवंबर 2017 ये सवाल पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए. तो मुगल एम्पायर तो खत्म हो गई. मुगल एम्पायर के बाद मराठा एम्पायर थी, और मराठा एम्पायर का भी एक वक्त आया कि वो खत्म हो गई. One reason was there was a person, an Afghan ruler. His name was Ahmad Shah Abdali, also known as Ahmad Shah Durrani. उन्होंने हमला किया और उन्होंने इस एम्पायर को क्रश किया, डिफीट किया. सेकेंडली, दे वर इन्वॉल्व इन फाइटिंग. आपस में ही जो मराठा सक्सेसर्स थे वो आपस में लड़ना शुरू हो गए, जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया. तीसरा कि ब्रिटिश के अराइवल के बाद भी ब्रिटिश के साथ लड़ाई हुई मराठास की, एंड इवेंचुअली द ब्रिटिश वर एबल टू डिफीट द मराठास. दिस इज द पॉइंट वेयर we're going to end the class. ये मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा, जिसके बाद मैं क्लास को खत्म कर दूंगा. So let's write the answer, everyone. इसका आंसर लिखते हैं. Why were the Marathas defeated after the decline of the Mughal Empire? बस थोड़ा सा हौसला और रखिएगा. ये आखिरी सवाल है जो कि आज की क्लास में कर रहे हैं, और ये भी यूनिक क्वेश्चन है. अक्टूबर नवंबर 2017 में आया है. उसके अलावा ये सवाल उससे पहले कभी नहीं आया, और उसके बाद भी कभी ये सवाल एग्जाम में नहीं आया. लेवल 3 का आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्कीम, विच मीन्स के we need to make 3 paragraphs, 5 marks for 1 explanation, 6 marks for 2 explanations, and 7 marks for 3 explanations. Let's begin, everyone. Firstly, Marathas were defeated by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, bracket open, Durrani, bracket close, in the third battle of Panipat in 1761, full stop. Ahmad Shah gave a crushing defeat to Marathas and restored Delhi and the Mughal emperor. तो मुगल एम्परर को एक्चुअली रिस्टोर कर लिया था, और ये किसने किया था? ये अहमद शाह दुर्रानी के जैसे किया था. सेकेंडली, मराठास were defeated. Marathas declined due to the infighting amongst their successors
who were more loyal to local rulers rather than the Maratha leaders in their capital city of Pune. So the administration collapsed and they were unable they were unable to manage vast empire. आखिरी पैराग्राफ लिखूंगा. This is the last paragraph of the day, everyone. Lastly, Marathas declined due to the arrival of the British, who fought multiple wars and exploited the disunity among the Marathas. Full stop. Also, the British were superior in terms of weapons and soldiers. So we're done with this answer, everyone. ये वाला आंसर मैंने आपको पूरा सॉल्व कर दिया. We solved several questions of past papers today. 3 marks, 4 marks, 7 marks. मैंने काफी सारे सवाल आपको सॉल्व करवाए. अगली जो क्लास होगी इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व किया जाता है. The next class is on Wednesday, everyone. And if you have any question, you may ask now. Otherwise, you can leave the class. Take care. Allah Hafiz. कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना आप लोग जा सकते हैं.